Hey guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to cover our topic types of angles. Here are 6 types of angles. One is right angle, then straight angle, complete angle, after this acute angle, then obtuse angle, and last is reflex angle. Let's start with the definition. Acute angle. An angle smaller than the right angle is called acute angle. This is our right angle and this is acute angle as written there. अगर कोई भी एंगल जो हमारे राइट एंगल से छोटा हो, उन सभी एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? उन सभी एंगल को हम बोलते हैं acute एंगल. acute एंगल जो हमारा होता है, acute एंगल हमारा स्मॉलर देन होता है किससे? राइट एंगल से. फिर बाद में भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. मैं आपको बाद में एग्जांपल से समझाऊंगी कौन कौन से अक्यूट कहलाते हैं और कौन कौन से अब ऑब्ट्यूज और हमारे रह गया था एक रिफ्लेक्स. ये सभी अभी हम सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल. इफ़ एन एंगल इज़ लार्जर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल इट इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. अगर कोई एंगल हमारा राइट एंगल से तो बड़ा हो बट स्ट्रेट एंगल से क्या हो, वो छोटा हो. अब स्ट्रेट एंगल कैसा होता है हमारा? स्ट्रेट एंगल लुक्स लाइक दिस. इट इज़ लाइक अ स्ट्रेट लाइन. ओके, इट इज़ आर स्ट्रेट एंगल. एज वी रीड इन आर डेफिनेशन, एंगल स्मॉलर देन right angle and greater than right angle and smaller than straight angle is called obtuse angle. We will write it like obtuse angle lesser than straight angle and greater than right angle. It will look straight angle is like this. Straight angle is like this and right angle looks like this, and our obtuse angle will lies between these two angles. It can be like this, but can't be like this. Our next angle is reflex angle. Its definition is a reflex angle is larger than a straight angle. Straight angles is this. अब इसमें रिफ्लेक्स एंगल बस इतना होता है कि ये जो हमारे स्ट्रेट एंगल हम बनाते हैं वो उससे भी बड़ा होता है. वो जैसे ये यहाँ पे ऐसे खुल गया, बट स्ट्रेट रिफ्लेक्स में क्या होगा, वो और नीचे चला जाता है. अगर ये स्ट्रेट एंगल से हल्का सा भी बड़ा है तो हमारी वो रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे तीनों एंगल्स की डेफिनेशन थी. हाँ, यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एंगल, अगर हम तीनों एंगल्स की राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल की रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारे जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल बट स्मॉलर देन complete angle. Okay, right angle, straight angle, complete angle, these are our base angles. इसी के रिस्पेक्ट में अब हमने बाकी के अपने जो 3 रिमेनिंग के एंगल्स बच गए थे हमारे, acute, obtuse एंड रिफ्लेक्स, वो भी सब देख लिए हैं. चलो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ. See, here is some example of acute angles. Look at this. Pizza slice, scissor and ladder, all these making acute angle. Right angles, if we compare these angles which are making by these 3, pizza slice, scissor and ladder, look, these looking smaller than the right angle. Right angle is, and this angle looks like this. It is also angle making by scissor, it's also smaller than right angle, and pizza slice, it is also making angle smaller than right angle. So see, these are some examples of obtuse angle. It is making angle like this and
it is making angle like this. This is more than right angle and lesser than straight angle. Same for this, it's making angle more than right angle and lesser than straight angle. Let's compare these angles with right angle and straight angle. See, if we compare with right angle, it's more than right angle and it is also making angle more than right angle. Hence proved it is making obtuse angle. Let's now compare with straight angle. See, lesser than straight angle and it is also lesser than straight angle. Okay, now let's move to our next angle, reflex angle. This is the example of, see, she's doing yoga. She was standing like this before making this posture. See, ये posture जो इस लड़की ने बनाया है वो कैसे, पहले स्ट्रेट खड़ी होगी, देन ऐसे मूव करते हुए यहाँ ऐसे ये ग्राउंड को टच करा, तो ये ऐसे बिल्कुल खड़े होकर फिर ऐसे घूमने तक इसने कैसा कितना एंगल बनाया, जो एंगल बनाया उसी एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा है, 90 से तो ज़्यादा है ही है। ये जो है वो हमारा एक स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा है। ये जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है ये राइट एंगल से, स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है। बस ये किससे छोटा होता है, ये होता है हमारा कंप्लीट एंगल से छोटा होता है। अगर ये पूरा यहाँ तक, ये जो उसके हैंड्स हैं, अगर ये यहाँ टच कर लेती फीट पे तो इसी पॉइंट पे वापस पहुँच जाती ना, तो वो हमारा कंप्लीट एंगल बन जाता। बट इसने ऐसे करके ऐसे एंगल बनाया, जो ऐसे घूम कर आ रहा है ये हमारा क्या बना रहा है, रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक्स की हैंड कुछ एंगल्स बना रही हैं, लाइक सब डिफरेंट एंगल्स फॉर्म कर रही हैं। आपको ये बताना है कि ये कौन से एंगल का टाइप है। यहाँ पे ए में कौन सा बना रही है, बी में कौन सा बना रही है, जो अभी तक टाइप्स पढ़ाए हैं मैंने आपको उन्हीं से बताना है। और इनका आंसर यही सेम ABC करके कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, ये हमारा एंगल्स के टाइप में रिमेनिंग 3 एंगल्स बचे थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।